So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the Hindu analysis of 22nd March, which is actually Saturday. So I hope you are aware that every day at 3 p.m. We come up with the Hindu analysis. So let us begin with today's class. So generally it is taken by Govind sir, but today on Saturday I take this class. So if I am audible and visible, please write yes in the comments so that we can start our session. Am I audible? Am I audible and visible? Now, can anyone tell me, today is 22nd March and there is a famous day which is celebrated on this day. I am asking days because these are generally asked, and if you have seen the previous set question of Jamia, MH, CT, even in ALET, they're asking days and themes. So in fact, in CLAT 2021, they asked about days and themes. So 22nd March is a very prominent day. What is that day? कौन सा दिन है वो? 22 मार्च को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? Anyone? I'm waiting for the response. World Water Day. And there is one more, actually Bihar Divas, but this is a state level, तो हो सकता हो ना पूछा जाए, लेकिन ये वाला पूछ सकते हैं. World Water Day. आपको पता होना चाहिए, हर साल 22 मार्च को World Water Day सेलिब्रेट किया जाता है. Okay, yes, Neha, you are right. So let's move on to today's The Hindu newspaper, that is 22nd March. So ये बहुत important article है. I mean, it has been very much in the news, and it has actually for the past 2 days it is coming again and again. Supreme Court says judge transfer is not related to rumors, और ये court में लिखा है actually. I hope you are aware. So what happened was the second senior most judge in the Delhi High Court, Justice Yashwant Varma. I mean, there is something related with his actually with him. What happened was a few days back, I think 17th के आसपास उनके घर में आग लग गई. So the fire broke out in his house. So then fire brigade or the fire tenders went. So people of fire services, they went to douse the fire or extinguish the fire, and where they have found huge amount of cash. The news में ये था कि उनके घर आग लगी, फिर फायर टेंडर्स वाले गए, मतलब दिल्ली फायर सर्विसेज वाले, उन्होंने आग बुझा दी. लेकिन मालूम हुआ जिस तरह से आ रहा है न्यूज की उनके घर में कैश मिला है. सो सम पीपल आर सेइंग 15 करोड़. वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स, बट ह्यूज पाइल ऑफ कैश ये जो मीडिया में छपा था. दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग इट. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिम बैक टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट. सो ओरिजिनली आल्सो ही वाज फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट. उनका जो मेन पेरेंट हाई कोर्ट था, ही वाज फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट, बट इन अक्टूबर 2021 ही वाज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली हाई कोर्ट. But now, given these things, these circumstances, he has been transferred back also. तो इनको वापस भी भेज दिया गया. अब दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं है. जो रूमर्स है ना, कोर्ट में लिख दिया है, मतलब वो जो आग लगने वाली बात है और पैसा मलने वाली बात है, उससे रिलेटेड नहीं है. दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट से. बहुत सारे लोग बोले कि कंस्पिरेसी. ये देवांश, वी डोंट नो एग्जैक्टली. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो चीज न्यूज में छपा है सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ. And of course, this requires an inquiry. तो इसके लिए इंक्वायरी भी बैठाई गई है. इन हाउस इंक्वायरी बैठाई जाती है. अनदर को लिखा ना. So the Delhi High Court has initiated an internal inquiry into the incident. या इसको कहते हैं इन हाउस इंक्वायरी. ओके, तो कि फाइंड आउट करने के लिए इन हाउस इंक्वायरी कि whether the allegation is true or not. तो ये सब फाइंड करने के लिए. And that is why it was very much in the news. ठीक है. तो अब आपसे एक सवाल है. पहला सवाल ये है कि जो हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर होता है, इट इज डन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्लीज टेल मी. तो यही न्यूज था. देखो ये सब न्यूज आई थी ना. सुप्रीम कोर्ट बिगिंस प्रोब आफ्टर कैश फाउंड एट दिल्ली हाई कोर्ट जज होम. तो कई रिपोर्ट्स में आई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है इस जज साहब के अगेंस्ट. And after receiving information about the matter, CJI Sanjeev Khanna convened a meeting of the collegium. It was unanimously, and all the judges together decided to transfer Justice Verma back to the Allahabad High Court. तो सारे जजेस ने मिलकर ये डिसाइड किया, सारे कॉलेजियम के मेंबर्स ने, कि इनको वापस पेरेंट हाई कोर्ट, उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए. अब प्लीज टेल मी दैट फॉर ट्रांसफरिंग अ हाई कोर्ट जज द कॉलेजियम कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? ये बताओ.
Article for transfer of High Court judge is 222, not 143. 222 is transfer of a High Court judge. Please remember it. It is in the news. ये आपको पता होना चाहिए. 222 आर्टिकल जो है वो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज से रिलेटेड है. अब आप हमको ये बताइए कि जो कॉलेजियम होती है, अगर ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज के लिए कितने मेंबर की कॉलेजियम होती है? यस खुशबू 5. देखो मैंने बताया भी एक्चुअली इस क्लास में. प्लीज वॉच दिस क्लास. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. को स्टार मार्क कर लेना. कॉलेजियम करियर लॉन्चर सर्च करना. मैंने बताया है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज के लिए देयर इज अ 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, बट ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज के लिए देयर इज अ 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर इट. तो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज के लिए 5 मेंबर कॉलेजियम होती है. पांचों ने एक साथ डिसाइड किया कि ही शुड बी ट्रांसफर्ड बैक. सो ऑल द 5 जजेस decided that he should be transferred back. So ये सब न्यूज में था. खैर, लेकिन कुछ जजेस ने एतराज भी व्यक्त किया. So out of these 5 judges, although they have agreed for transfer, but they said कि just transferring is not enough. It will erode the public confidence in the legal system. तो मतलब इससे ये होगा कि लोगों का भरोसा उठ जाएगा. ये कहा some judges said that it will actually reduce the trust of the public on the judiciary. So that is why it is better that he should resign by themselves. Otherwise, there should be an impeachment or removal process should be initiated in the parliament. तो कुछ कॉलेजियम के जजेस ने ये कहा कि ये बेहतर नहीं है, उनको कहा जाए कि आप रिजाइन कर दीजिए खुद से, नहीं तो पार्लियामेंट में रिमूवल प्रोसेस शुरू किया जाए. एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस आल्सो, रिमूवल प्रोसेस, है ना, a few days back. तो यही एक्चुअली मेन जो आर्टिकल आई थी, यही फर्स्ट पेज पर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल. उसी के बाद काफी हंगामा हो गया. फायर एट दिल्ली हाई कोर्ट जज हाउस रीड्स रिकवरी ऑफ कैश. तो इसके बाद ही काफी हंगामा हो गया. एंड वो सब घर पे नहीं थे जब आग लगी थी. तो एंड दीस थिंग्स. खैर, सो नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज. हालांकि यहाँ पे इंपीचमेंट वर्ड लिख दिया उन लोगों ने, बट आइडियली द बेटर वर्ड टू बी यूज्ड इज रिमूवल. तो मैंने इस क्लास में, इन दिस क्लास आई हैव डिस्कस्ड. ठीक है, ये सर्च करना रिमूवल ऑफ एससी जज करियर लॉन्चर, यू विल गेट दिस वीडियो. चलिए आप इसका आंसर बताइए इस क्वेश्चन का. आई हैड एक्सप्लेन इन दैट क्लास. Which of the following is correct regarding the removal of a high court judge? कौन सी बात सही है? अगर एक हाई कोर्ट जज को रिमूव किया जाएगा तो क्या प्रोसेस होता है? यस, पीयूष एंड खुशबू बोथ आर राइट. इट इज सेम एज द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज मेंशन अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4. और ये वाली बात लिखी हुई कहां है? आर्टिकल 217 में. दिस स्टेटमेंट इज मेंशन्ड देयर. यस देवांश, यू आर आल्सो राइट. ठीक है, तो ये बताया जा रहा है. देखो 217 पढ़ोगे तो इसमें लिखा है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है पार्लियामेंट के द्वारा, वैसे ही हाई कोर्ट के जज का भी रिमूवल होगा. The way the Supreme Court judge is removed, in the same fashion the High Court judge is also removed under so Article 217 explains that you should see Article 124 clause 4 where the removal of Supreme Court judge is mentioned. So that is the same process in High Court also. So I have already made a video about the removal of a Supreme Court judge. The detailed explanation I have made it here. Now this topic becomes even more important. Why this topic becomes important? Because now this controversy is in the news. Maybe this thing will come in the newspaper about removal of judges. तो हो सकता है अखबार में कई बार आए कि रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है, प्रोसेस क्या है. जजेस इंक्वायरी एक्ट आई हैव टोल्ड यू इन दिस क्लास, and there's a 3-member committee that needs to be removal processes, how it is different from impeachment of president of India under article 61. all these things I have explained here. तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ बताई है, जिसमें मैंने ये बताया है कि हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज, बिकॉज दोनों का प्रोसेस सेम होता है, उनको रिमूव कैसे किया जाता है, ये सब मैंने बताया है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. एंड सो सुप्रीम कोर्ट सेज जज ट्रांसफर इज नॉट रिलेटेड टू रूमर्स. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है अबाउट विद रिगार्ड टू इंसिडेंट एट द जज हाउस कंपेलिंग द एपिस्कोप को ट्रांसफर आउट ऑफ हिम, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस वजह से नहीं हुआ. मतलब जो रूमर है, मतलब अभी तो मतलब क्लियर नहीं है ना, सो इसीलिए इसको रूमर कोर्ट में लिखा गया है ऐसे. ओके, दैट इज व्हाट द केस. तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल आई थी कि ह्यूज पाइल ऑफ कैश वाज फाउंड आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट इन हिज रेसिडेंशियल बंगला. इन उनके सरकारी जो बंगला है उसमें आग लग गई, उसके बाद जो है ह्यूज पाइल ऑफ कैश मिला था. ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. एंड ही इज द सेकंड सीनियर मोस्ट जज. सेकंड सीनियर मोस्ट जज मतलब चीफ जस्टिस के बाद ही इज द सेकंड सीनियर मोस्ट जज. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. तो ये सब बात हुई और इनके अगेंस्ट जो है मतलब इंक्वायरी वगैरह, इंटरनल इंक्वायरी वगैरह भी स्टार्ट हुई और उनको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है, व्हिच वाज हिज अर्लियर पेरेंट हाई कोर्ट. ठीक है,
तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो अक्टूबर 2014 में ही वाज मेड एडिशनल जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट. ठीक है. फिर 2016 में मेड परमानेंट जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड इन अक्टूबर 2021 ही वाज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली हाई कोर्ट. Born in 1969 इलाहाबाद. ठीक है. So that is what you should be knowing about. Now, अब इसमें ना इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराजगी व्यक्त की है. सो द इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक्चुअली वाज नॉट हैप्पी विद इट दैट वी आर नॉट ट्रैश बिन. मतलब उन्होंने कहा कि जब इन पर एलिगेशन लगाए तो हम हमारे यहाँ क्यों वापस भेजा जा रहा है. वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट करप्शन. सो दैट इज व्हाट द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सेड दैट if there is an allegation against him, why it is being transferred back to the Allahabad High Court? We are not happy. We are not going to accept him. तो ये उन्होंने कहा है. तो खैर इसमें बहुत सारे डिबेट है कि किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट से तो एटलीस्ट हटा देना चाहिए, कहीं और इसलिए भेज देना चाहिए बिकॉज हो सकता है he might influence the in-house inquiry or something like that. तो ये सब खैर there are different arguments regarding it. Kapil Sibal is Supreme Court Bar Association President. दिवांश, ये इलाहाबाद हर हाई कोर्ट में भी अपने बार एसोसिएशन होते हैं, उनके प्रेसिडेंट है मिस्टर अनिल तिवारी. आई होप नाउ इट इज क्लियर. ठीक है. तो खैर यही सब बात हो रही है. एक चीज आपको पता होना चाहिए, अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट बी पनिश्ड बाय एनी अदर थिंग एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री रिमूवल, है ना. तो मेन चीज यही है. बहुत ये होता है कि हाँ, अगर कोई बड़ी बेंच बनाया जाए और अरेस्ट वारंट वगैरह, एक बार हुआ था जैसे सीएस कर्णन के मामले में हुआ था, जस्टिस सीएस कर्णन करके थे तमिलनाडु हाई कोर्ट के जस्ट 2017-18 में. सो उस टाइम पर कुछ हुआ था कि बट जनरली स्पीकिंग अदर देन रिमूवल बाय पार्लियामेंट देयर इज नो लाइक पनिशमेंट लेसर देन दैट. ठीक है. उससे और कोई जनरली पनिशमेंट वगैरह नहीं हो सकती है बिकॉज उनको काफी प्रोटेक्शन मिला होता है जजेस को, है ना. So these are the things that Allahabad High Court Bar Association has said oppose the proposed repatriation etc. तो ये सब न्यूज आ रही थी कि उनको वापस भेज दिया जाएगा, तो उन लोग नाराज हुए कि why you are actually sending this. Okay, that is what you should know. Okay, let's move on to the next article. The next article talks about Tamil Nadu Chief Minister Mr. M.K. Stalin terms delimitation meeting as beginning of movement that will shape country's future. अच्छा, अभी delimitation की बात बहुत ज्यादा हो रही. Why? देखो, हम लोगों ने बताया था कि इफ यू रीड द डिफरेंट आर्टिकल्स, है ना. सो आर्टिकल आई थिंक 82 वगैरह पढ़ोगे, सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट कि जो सीट्स होती है लोकसभा की वो प्रोपोर्शनल होती है. तो हर स्टेट को, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार को 40 सीट्स मिली है. ठीक है. आई एम एक्सप्लेनिंग. बिहार हैज गॉट 40 सीट्स, यूपी हैज गॉट 80 सीट्स इन लोकसभा एंड तमिलनाडु को मिला 39 सीट्स. एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन. यही होता है ना कि सीट्स जो है टू स्टेट्स, जो लोकसभा सीट्स मिलेगी, दैट विल बी प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन. तो अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आपको ज्यादा लोकसभा की सीट मिल जाएगी, राइट. सो इफ योर पॉपुलेशन इंक्रीजेस देन यू विल गेट मोर लोकसभा सीट्स. बट दिस इज अगेंस्ट, दिस एक्चुअली इज डिसइंसेंटिव टू फैमिली प्लानिंग, द आइडिया ऑफ फैमिली प्लानिंग और कंट्रोलिंग पॉपुलेशन. मतलब यह है कि मान लो कि अगर तमिलनाडु ने अच्छे से पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया तो अगले बार उनको 39 हो सकता है, कम सीट 30 सीट हो जाए. और नॉर्थ इंडिया ने ठीक से नहीं कंट्रोल किया तो इन लोगों की सीट बढ़ जाए, मान लीजिए 5-10 सीट. यू गॉट इट. So the idea of proportional allocation of seats to the state, proportion to the population, is actually a disincentive to the population control measures, because if let's say the southern states were more successful in controlling the population, so from that logic they will get lesser seats in Lok Sabha, and of course that will be a bad thing for them. So that is why 1971 it was seized, it was freezed, the seats were freezed. तो ये जो मैं आपको सीट्स दिखा रहा हूँ ये 1971 से ही अभी तक चला रहा है. ठीक है. So it was freezed till I think 2001 and then later on again it was extended till 2026, है ना, by something some amendment 80, 84, 80. Please check it, है ना. So now after 2076 the first census will happen in 2031 and then we'll be having perhaps new delimitation. Now again the southern states will not be happy because of course the population control is more successful in southern states. ठीक है. तो चूंकि फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक, अब 2031 में अगला सेंसस होगा तो उसके बाद हो सकता है इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाए, तो ऑफ कोर्स उससे नॉर्दर्न स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिल जाएगी एज कंपेयर टू साउदर्न स्टेट्स. इससे साउदर्न स्टेट्स वेयर आर नॉट हैप्पी. इसीलिए स्पेशली यू कैन सी द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट डिलिमिटेशन एंड ऑल, एंड इसीलिए आई होप इट इज क्लियर. आपको समझ में आ गई ये बात?
इज इट क्लियर? यस और नो? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया। Okay. Yes. Now let's move on to the next article. India's marginalized parliament in budgetary affairs. अच्छा, इसमें उन्होंने एक चीज का डिस्कशन किया है, उसको कहते हैं पीबीओ, पार्लियामेंट्री बजटरी ऑफिस. डज इट एग्जिस्ट इन इंडिया, यस और नो? पार्लियामेंट्री बजटरी ऑफिस ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यस और नो? प्लीज टेल मी. नो. Yes, Piyush, very good. Actually, this is an advice given by the author that it should be formed. Yes, Devansh, very good. यही इन ऑथर का जो राय है इस आर्टिकल में वो यही है कि पीबीओ बनाया जाना चाहिए. That is what his advice is. So the budget is more than a financial document. अच्छा, एक चीज और पूछ रहा हूँ. This was also asked in an exam. What is the term used for budget in the Constitution? There is a specific term used. वो कौन सा टर्म है बताना है. एंड विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इट. कौन सा संविधान की कौन सा अनुच्छेद इसकी बात करता है, बताइए. एनीवन? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ग्रेट पीयूष, वेरी गुड. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं. बजट वर्ड नहीं मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है. और आर्टिकल का नाम बताइए. लेट मी राइट इट क्लियरली. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112. वेरी गुड, ग्रेट पीयूष. हाँ, तो लेट मी शो. यस, यहाँ आप देख सकते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल स्टेट डेट कॉज बिफोर द डेट डाउन, है ना. इसको पढ़ लेना, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बजट. इस बार हम लोगों ने क्लास भी लिया, आप जाके यहाँ पे सर्च करना यूट्यूब पर, यू विल गेट दिस. ये हिंदी में, मतलब मैंने हिंदी में बोला है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसको आप इंग्लिश कह सकते हो एक तरह से, ठीक है. और दूसरा ये है विच इज एक्चुअली इन इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है. सो वट एवर यू वांट यू कैन वॉच, अगर आपने नहीं देखा है. ये गोविंद सर ने लिया, ये मैंने लिया, ठीक है. ओके. तो इसी की बात हो रही कि तो इसमें बात क्या करें, इट इज मोर देन जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो उन्होंने कहा कि देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड कहा जाता है, लेकिन इस सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, और भी बहुत कुछ होता है. इट्स मोर देन दैट. रिफ्लेक्ट्स नेशंस प्रायोरिटीज, इकोनॉमिक विजन, गवर्नेंस फिलॉसफी. तो यही बता रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ है. नेशन की प्रायोरिटी, इकोनॉमिक विजन और भी बहुत सारे चीज में रिफ्लेक्ट होता है. क्रॉस डेमोक्रेसीज पार्लियामेंट एक्सरसाइज पावर ऑफ पर्स व्हिच इज क्रिटिकल इन शेपिंग नेशनल बजट एटसेट्रा. हाउएवर इन इंडिया पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस ओवर बजट रिमेंस मिनिमल. तो बता क्या रहे कि पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस बजट में बहुत कम होता है. देखो, एक वजह तो ये आप समझ सकते हो कि सिर्फ इट नीड्स, सिंस इट इज अ मनी बिल, इट नीड्स ओनली अप्रूवल ऑफ लोकसभा. राज्यसभा की अप्रूवल की जरूरत भी नहीं होती. एक तो ये बात होगी. दूसरी बात है, उतना मतलब वो जो बात करे वो ये कि उतना हेल्दी डिबेट डिस्कशन नहीं होता है. सो देयर इज नॉट मच हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशन. देयर इज ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ बजट टू बी पास्ड ओनली इन लोकसभा, ठीक है. तो बताइए कि क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स होना चाहिए, प्री बजट डिस्कशन होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस होना चाहिए. सो पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस एक तरह का इंडिपेंडेंट नॉन पार्टिसन बॉडी होता है, जिसमें एक्चुअली टेक्निकल मतलब टेक्नीशियंस लाइक many technical experts sit there to discuss about the budget, ठीक है ना. तो इस तरह की चीज होती है. आई थिंक इंग्लैंड वगैरह में होता है, इंडिया में नहीं है, बट ही इज एक्चुअली एडवाइजिंग दैट देयर शुड बी अ पीबीओ, ठीक है. तो इनकी राय यही है कि पार्लियामेंट्री बजटरी ऑफिस होना चाहिए, ठीक है. तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, है ना. इट इज अ फंडामेंटल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इसमें, ठीक है. फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट फाइनेंशियल गवर्नमेंट 9th सेंचुरी टू फिस्कल पॉलिसी एक्सेट्रा, है ना. तो ये बता रहे हैं कि ग्लोबली द डिग्री ऑफ लेजिस्लेटिव ओवर बजट वेरीज. तो ये बता ये रहे हैं कि पूरी दुनिया में बजट का जो कंट्रोल है, लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस यानी पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है बजट्स पर, वो डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज में. जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल. जैसे यूएस में क्या होता है, इवन अपर हाउस सेनेट कैन रिजेक्ट अ बजट. सेनेट मतलब लाइक इंडिया में राज्यसभा टाइप समथिंग. बट इन इंडिया ऑफ कोर्स द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ बजट और अ मनी बिल. बट सेनेट में यूएस के पास पावर होता है. एक एग्जांपल उन्होंने बताया, मतलब मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है. दीज आर द थिंग्स. तो किसी किसी कंट्री में बजट, पार्लियामेंट का कंट्रोल बजट में बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी कंट्रीज में कम होता है, ठीक है ना. दैट इज व्हाट ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट. अब इसमें अब इतना डिटेल रिसर्च नहीं करना है एक एक चीज, ठीक है. बट आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए. तो इन्होंने ये सब बात किया था, है ना. सो मोर ओवर राज्यसभा डिस्पाइट डेमोक्रेटिक हैज नो सब्सटेंशियल रोल इन बजट डिस्कशन. पता है ना कि राज्यसभा कोई रोल नहीं होता है, बहुत कम ही रोल होता है. थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ, फिर राज्यसभा ब्लॉक भी नहीं कर सकता है ना.
हाँ, इसमें लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ब्रिटेन में उसमें कुछ हद तक थोड़ा बहुत होता भी है एक्सेट्रा, है ना। हाँ, यस देवांश, यू आर राइट, मनी बिल को 14 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते ये राज्यसभा। यस देवांश, वेरी गुड। हाँ, so these are the things, फिर प्री बजट डिस्कशन भी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर पार्लियामेंट टू रेगुलेट साइटफुल एंड ऑल, है ना। तो कुछ राय वगैरह दे रहे हैं, दो की रिफॉर्म्स है ना। पार्लियामेंट शुड इनिशिएट प्री बजट डिस्कशन आल्सो, यानी पहला तो एक बजट से पहले जो डिस्कशन होता है मॉनसून सेशन में, उस पर भी जोर दिया जाना चाहिए, है ना। 5 से 7 डे डिस्कशन होना चाहिए, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। और सेकंड जो वो बात कर रहे हैं, है ना, वो पब्लिक वही बजटरी ऑफिस बनाने की, है ना। सो दीज आर द थिंग्स ही इज टॉकिंग अबाउट, एक पार्लियामेंट्री बजटरी ऑफिस हो जिसमें एक्सपर्ट टेक्नीशियंस हो, और वो जब जो बजट पेश किया जाए उस पर रिसर्च एनालिसिस किया जाए और डिटेल्ड इनसाइट्स डेटा ड्रिवन की कितना सही है कितना गलत है पहले साल से ये वो एक्सेट्रा, है ना। तो जैसे यूएस कांग्रेस में बजट ऑफिस होता है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, यूके में है, सो समथिंग सिमिलर टू दैट वी आल्सो नीड। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, इसमें बहुत no need to go very much in detail and do research about it, but have a basic idea that yes, the concept of PBO exists in these countries also, but it is not there in India, and it should be there because this will be helpful in analyzing the budget more effectively from expert point of view। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पीबीओ होना चाहिए इंडिया में भी। ठीक है, इसमें और कुछ खास जानने के लिए वही ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल सेक्टर बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है, this was asked, actually there are two questions in the next article। first is, एक क्वेश्चन आया था, रायसीना हिल is found in which city? AMHCT का क्वेश्चन था और 4 ऑप्शन दिया था, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन था। as far as I could remember, where do you find, कहां मिलेगा रायसीना हिल? This was asked in the exam। yes देवांश, very good, दिल्ली में। एक चीज और बताइए कि जो रायसीना हिल है, एक्चुअली दिस इज फेमस वेयर, व्हाई रायसीना हिल फेमस क्यों है? देखो ये जो है ना, इस एरिया में जहां प्रेसिडेंट्स हाउस है, जो राष्ट्रपति भवन है, सो एरिया अराउंड राष्ट्रपति भवन इज कॉल्ड एज रायसीना हिल। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन जिस एरिया में दिल्ली में, उसको हम लोग रायसीना हिल कहते हैं। ठीक है, सो द बेस्ड ऑन दिस नेम एक रायसीना डायलॉग होता है। रायसीना डायलॉग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ORF और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिलके, where foreign diplomats and foreign countries president and ambassadors are etc are invited। ओके, तो रायसीना डायलॉग में ये होता है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बुलाती है, उसमें फॉरेन किसी डेलीगेट्स को बुलाया जाता है और फिर वहां डायलॉग्स वगैरह होते हैं। इस बार रायसीना डायलॉग में किसको बुलाया गया था? हु वाज इनवाइटेड टू रायसीना डायलॉग दिस ईयर? आज एडिटोरियल मेंशन था ये, इट वाज मेंशन इन द एडिटोरियल। व्हिच पर्सन वाज इनवाइटेड in a Raisina dialogue as the chief guest? Please tell me। बताइए। It was there in today's editorial। किसी ने नहीं देखा? India and New Zealand stand to benefit from greater cooperation। 10th edition of Raisina Dialogue, New Zealand Prime Minister Christopher Luxon came as a chief guest। Yes Devansh, very good। हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ रूल्स एक्सेट्रा, तो ये बात कही, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो इसमें फ्रीडम ऑफ इंडो पैसिफिक की बात कही गई, है ना। न्यूजीलैंड क्वाड का पार्ट नहीं है ना, बट स्टिल यू शुड नो। क्वाड आप जानते हो? दीज ऑल आर पार्ट ऑफ क्वाड, है ना। सॉरी, चाइना कर दिया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, दिस इज क्वाड, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो ये क्वाड का पार्ट है ना। तो इसमें यह है कि न्यूजीलैंड क्वाड का पार्ट नहीं है ना, वही लिख रहे हैं इसमें। तो क्वाड इज जनरली कंसिडर्ड एज एंटी चाइना प्लेटफॉर्म, जनरली कहा जाता है। फिर देखो, फ्रीडम ऑफ इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक कौन से रीजन कहते हैं? इंडियन ओशन हुआ, ये पैसिफिक ओशन हुआ। तो जब हम बोल रहे हैं इंडो पैसिफिक, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड एज इंडो पैसिफिक। So when we are talking about freedom, free navigation in Indo-Pacific, always remember this is in direct reference to China। ये चाइना की तरफ इशारा किया जाता है जब ये बोला जाता है ना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंडो पैसिफिक। ओके,
सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. तो फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स ऐसे ही बोले जाते हैं, बोला कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो यही सब बात हुई. फिर दे आल्सो एग्री टू स्टार्ट ऑन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एमिंग टू एक्सपैंड देयर बायलैटरल ट्रेड, करेंटली $2 बिलियन. तो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो ट्रेड है वो $2 बिलियन का है. इसको इंक्रीज किया जाने की बात की जा रही है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वर टॉक्ड हियर इन दिस. फिर न्यूजीलैंड ने कहा कि आरसीईपी की बात कही गई, of which New Zealand is a member, but India actually is not. However, challenges remain, etc., which contribute to India's decision to exit RCEP. ठीक है, तो आपको पता होगा, मैंने इस क्लास में पढ़ाया है. So just search this all about ASEAN Career Launcher. You will get to know about RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. इसमें इंडिया मेंबर बनने वाला था, बट लास्ट मोमेंट में विड्रॉ कर लिया था हम लोगों ने. So देखो, ये 10 ASEAN कंट्रीज है. These ASEAN countries, ये मैंने बताया यहाँ. So all these ASEAN countries I have discussed here. प्लस 5 मोर कंट्रीज का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. इसमें इंडिया भी आने वाला था, बट लास्ट मोमेंट पे इंडिया विड्रू. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. तो ये पता होना चाहिए. हाँ, ट्रेड विद चाइना इज, देखो, हाँ, न्यूजीलैंड का चाइना से ट्रेड $24 बिलियन का है. ओके, तो इनका $24 बिलियन का ट्रेड है, और हमारे न्यूजीलैंड से सिर्फ $2 बिलियन का ट्रेड है. दैट इज व्हाट यू शुड नो. ओके, दूसरी चीज है कि इंडिया ने विड्रॉ क्यों किया था, ये मैंने यहां एक्सप्लेन किया है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट हियर, व्हाई इंडिया विड्रू फ्रॉम आरसीईपी इन दिस क्लास. ठीक है, तो गो एंड रीड अबाउट इट. खैर, तो अब हम लोग थोड़ा सा राइसिना डायलॉग के बारे में जान लेते हैं. एनुअल मल्टीलैटरल मीटिंग है, हर साल होती है, ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री. देखो, इसका लोगो भी वैसा ही है. देखो, ये जो बिल्डिंग है ना, राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग है. दिस वन इज अ बिल्डिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन. उसी के नाम पर है ना. देखो, राष्ट्रपति भवन का फोटो कहां चला गया, ये है ना. देखो, इसी तरह दिख रहा है ना. सो बेसिकली इन दिस नेम दे हैव एस्टैब्लिश्ड दिस राइसिना डायलॉग. ओके, तो राइसिना डायलॉग में मेन जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का रोल है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, इन दोनों मिलकर के ऑर्गेनाइज कराते हैं. जैसे शांग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर में, वैसा शांग्रीला 5-स्टार होटल है. ठीक है, इफ यू लिव इन दिल्ली देन आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट. शांग्रीला वहां भी है होटल. तो शांग्रीला डायलॉग होता है, शांग्रीला 5-स्टार होटल का चेन है, तो उसी के वही होता है. तो जनरली तो शांग्रीला डायलॉग कहते हैं, सिंगापुर में होता है. समथिंग सिमिलर टू दैट इंडिया में राइसिना डायलॉग होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. अभी हुआ था 17 से 19 मार्च. ठीक है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनके बारे में चाहो तो पढ़ सकते हो कि क्या क्या हुआ था राइसिना डायलॉग में. और ये पूछेंगे थीम जो है P³ है ना, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, और 3P करके कुछ भी, जैसे आप याद कर लो. So yes, so the guest was the Prime Minister of New Zealand, Christopher Luxon. ठीक है, so and here is India's Prime Minister. So that is what you should be knowing about. है ना, तो है ना, इंडिया न्यूजीलैंड स्टैंड टू बेनिफिट एंड ऑल. इसमें और कुछ है डिस्कस करने के लिए. सो ओके, now let's talk about this charting a route for IORA under India's leadership. What is IORA? Indian Ocean Rim Association. ये जानते हो आप लोग? IORA, let me write it here. ये लिख देता हूं. IORA पर ये एडिटोरियल है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. किसी चीज का रिम क्या होता है? जो साइकिल का रिम होता है, तो बॉर्डर होता है, उसको रिम कहते हैं ना. साइकिल जैसे दिस इज द व्हील ऑफ साइकिल, तो हमने बोलते हैं रिम खराब हो गया साइकिल का. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर, द पेरिफेरी है ना. सो द थिंग व्हिच टचेस, सो बेसिकली this is the Indian Ocean. So IO I am writing. So the countries which are touching the Indian Ocean, and they have formed a grouping. So dark green color are members. ठीक है, IORA members. So if you see it, this is India, Sri Lanka is member, and Thailand is member, Indonesia is member, Australia is member, Madagascar is member, then Oman, Yemen, this is Iran है ना, Somalia. So then we have Kenya, Tanzania, ये सब countries member है IORA के. ठीक है, so basically this is those who are touching the border with Indian Ocean and around it. ठीक है, पाकिस्तान मेंबर नहीं है इधर, म्यांमार इज नॉट अ मेंबर, जस्ट हैव एन आइडिया. Okay, so this is Indian Ocean Rim Association and headquartered is in Ebeen, Mauritius. Currently India is the vice chair. ठीक है, और चेयर श्रीलंका है, but very soon we will become a chair, we will be the head of IORA. इसी पर आर्टिकल है. So the entire article is on this कि जल्द ही हम लोग IORA के चेयर बन जाएंगे. अभी वाइस चेयरमैन है, आप देख सकते हो है ना. So that is what they are talking, the author is talking about. It is now currently the vice chair, but very soon है ना, कहीं पे लिखा होगा देखो ना, है ना, नवंबर में.
As India's leadership prepares to step up to chair of IORA in November 2025, it is now vice chair. तो currently हम लोग vice chairman है India IORA के, but in November 2025 we will become the chairman of or the head of IORA for 3 years, I think, for 2 years, sorry, है ना. तो 2 साल के लिए IORA के चेयरमैन होंगे. 3 प्रायोरिटीज है ना. तो ये आप लोग को पता होना चाहिए. ओके, तो इंडियन ओशन रेंज के आसपास की चीजें हैं ना. 75% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होता है, 50% डेली ऑयल कंजम्पशन. यस, आपको पता है यहाँ पर ऑयल रिच कंट्रीज है, तो यहाँ से सारा ऑयल जाता है ना. सो ऑल द ऑयल नेचुरल गैस गोज थ्रू दिस रूट, है ना. A lot of trades happen. I hope you are aware, यहाँ से ट्रेड होता है सुइस कैनाल के थ्रू. A lot of trade happens in this Indian Ocean region. तो ये सब बात कही जा रही है यहाँ पे, ठीक है. So these are the things you should be knowing about, है ना. अब इतना नंबर्स नहीं याद रखने, बट yes you should know. It also faces challenges like piracy, terrorism, human drug trafficking. आपको पता है यहाँ पर सोमालिया में पायरेट्स बहुत फेमस होते हैं, सोमालियन पायरेट्स. फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, जैसे यहाँ ये है गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, यहाँ पर होता है गोल्डन क्रेसेंट व्हाट वी कॉल. सो दीस आर द प्लेसेस. तो ये बता ये रहे हैं कि ये सब का भी विक्टिम है ना. आपने सुना होगा गोल्डन ट्रायंगल, तो यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, ये सब. एंड गोल्डन क्रेसेंट यहाँ होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान. दैट्स कॉल्ड एज गोल्डन क्रेसेंट, व्हिच इज फेमस फॉर ड्रग्स एंड ऑल. तो ये भी बता रहे हैं टेररिज्म एंड ऑल इज आल्सो देयर. तो ये सब मतलब इसमें इश्यूज भी है, ह्यूमंस एंड ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह भी इश्यूज है. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड. इश्यूज फेस्ड बाय आईओआर, है ना, इज रिलेटिव फ्री ऑफ द ग्रेट पावर कंजम्पशन एटसेट्रा, है ना. तो ये सब बता रहे, कुछ और इश्यूज भी है ना. तो बजट इज इंडिकेटेड एंड ऑल. इसमें और कुछ खास है तो विल डिस्कस. ऑयल, नेचुरल गैस, मैरीन टूरिज्म, वी आर डन विद इट. हाँ, इंडिया की एक फिलॉसफी है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. सो ये इंडिया की फिलॉसफी है कि वी हैव टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, सागर इनिशिएटिव कहते हैं, ताकि इसके तहत ये इंश्योर किया जाना कि यहाँ पर there should be peace and there should not be any terrorism or violence in this region. ठीक है ना, इस रीजन में सागर इनिशिएटिव. इसमें ऑफ कोर्स नेवी का रोल होता है ना, प्रोटेक्शन में एंड ऑल. इंडियन नेवीज रोल इज देयर आल्सो. ठीक है, ठीक है. have made significant contribution to research and marine technology. तो आयोरा का मेंबर ऑस्ट्रेलिया भी है, जिन्होंने मैरीन टेक्नोलॉजी में काफी रिसर्च किया है. So these are the things being talked about, है ना. So that is what you should know. ब्लू इकोनॉमी पर रिसर्च वगैरह की बात हो रही है. अब इतना डिटेल नहीं जाना, बट इतना पता होना चाहिए आईओआर क्या होता है. वाइस चेयर अभी इंडिया है, फिर लेटर ऑन इट विल बिकम अ चेयर. ठीक है. सो हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट आईओआर, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. हु इज द वाइस चेयरमैन एंड इंडिया इज द वाइस चेयरमैन, एंड बाय नवंबर 2025 इंडिया विल बिकम द चेयर. और चेयरमैन नहीं लिखते हैं, चेयर लिखते हैं. सो जस्ट अंडरस्टैंड इट फॉर 2 years. And India must develop a strategy for COP30. So where we are going to have COP30? Please tell me. Under UNFCCC, UN Framework Convention on Climate Change, COP30 is going to happen where? Please tell me. And what is COP30? तो आप ये वाली क्लास सर्च कर रहे हैं YouTube पर. You will get this video. I have explained in detail about Earth Summit. I have explained in detail about UNFCCC. I have explained in detail about all these things. ठीक है. So COP30 वगैरह सब यहाँ बताया. ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए what is UNFCCC, what is Paris Climate Agreement, why is so all these stuff I have discussed here. What do you mean by UNFCCC, etc. And this year it is the 30th COP30 summit under UNFCCC. It is going to happen in Belém, Brazil. शहर का नाम भी याद रखिएगा. नवंबर में COP30 होने जा रही है. क्या होता है UNFCCC, सारा कुछ मैंने यहाँ डिस्कस किया है. ठीक है. So that is what you should know. तो मैं बेलेम दिखा देता हूँ. Here is India. This is South America. ये ब्राजील है ना, ये ब्राजील है, और यहाँ पर बेलेम है. ठीक है. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. ओके, है. तो यही COP30 होगा इस साल नवंबर में. तो लास्ट ईयर बाकू में हुआ था. यहाँ पर बाकू पड़ता है अजरबैजान में. ये भी पूछ सकते हैं, लास्ट ईयर वाला हो सकता है पूछ रहे. COP29 हैपेंड हियर. ओके, तो ये बता रहे कि समर जो है इस बार जल्दी आ गया. इट हैज अराइव्ड अर्ली, है ना. सो फरवरी हीट वेव्स आर ऑफिशियली इन गोवा एंड महाराष्ट्र. इवन इन फरवरी वी हैव सीन दीस थिंग्स. सो बेसिकली सब क्या बता रहे हैं? सो दीस आर एक्चुअली सेइंग, टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज. मतलब जब गर्मी पड़ना होता है ठंडा पड़ रहा है, ठंडा पड़ना होता है गर्मी पड़ रहा है ना. तो बेसिकली वी आर सीइंग अब्रप्ट changes in whatever you can say climate or weather, whatever word you can use, although it is used for different purpose. But yes, we are seeing these things nowadays. You can say different weathers. When we are supposed to have cold, we are actually witnessing heat, and when we are supposed to have hot temperature, we are witnessing cold or abrupt rainfall, and these things are happening. तो ये सब उल्टा पुल्टा सब कुछ हो रहा है, और इसका कारण है actually
ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये 1 डिग्री वाला ये सब जो है ना, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ये सब मैंने इसमें बताया है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट, आई हैव डिस्कस्ड इट इन दिस क्लास, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट। फाइन, तो UNFCCC के बारे में 30, इट इज गोइंग टू हैपन इन बेलेम इन ब्राजील, एंड हु इज द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इज लूला डी सिल्वा। Okay, so these are the things being talked about here. The next is Rajya Sabha chairman reminds MPs of NJAC bill, judicial accountability. अब आप बताइए, NJAC जो एक्ट था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इट इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कौन सा अमेंडमेंट था? NJAC was about appointment of Supreme Court and High Court judges. So it was supposed to actually replace collegium. Collegium को replace करने के लिए था, and it was passed by actually the parliament and ratified by half of the states. Still, it was struck down by the Supreme Court in 2015 because of violative of Supreme Court, violative of the independence of judiciary. Which amendment talked about NJAC brought? इस क्लास से मैंने बताया है, प्लीज गो एंड वॉच इट। कॉलेजियम करियर लॉन्चर सर्च करें, यू विल गेट दिस वीडियो, आई हैव डिस्कस्ड एंड आई एम वेरी सॉरी आई हैवंट गॉट द आंसर। कोई बताओ यार, क्या क्या आंसर होगा? Which amendment brought 99th? Yes पीयूष, वेरी गुड, 99th amendment brought NJAC। ठीक है, सब पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। So it was brought but later on struck down by Supreme Court, ठीक है। We have explained in this detail and that's called as fourth judge's case where NJAC was struck down, ठीक है। ऐसे 3 judges case ही बहुत फेमस होता है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस, बट दिस इज आल्सो फेमस, द फोर्थ जजेस केस। नाउ एक और आर्टिकल थी, देयर इज प्रोग्रेस ऑन GM फूड क्रॉप सेज ऑफिशियल। अच्छा, आपको पता है, यू नो व्हाट इज GM क्रॉप? ये काफी न्यूज में, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, genetically modified crop. Until now in India, only one crop has been allowed as GM crop, which is allowed for commercial cultivation. What is the name of that crop? अभी तक इंडिया में सिर्फ एक GM क्रॉप अलाउ किया गया, उसका नाम बताना है। और GM क्रॉप का मतलब क्या होता है? अब ऐसा समझो, तो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। इस DNA को आप मॉडिफिकेशन करोगे इसकी जीनोम का, तो इसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अगर आपको DNA का मॉडिफिकेशन करना है या तो उसके लिए एक टूल यूज किया जाता है, उस टूल का नाम बताइए जो कि अक्सर अखबार में आता है। What is the name of a DNA editing tool which comes in the newspaper again and again? हाँ, एक क्रॉप जो अलाउ किया गया उसका नाम है BT cotton. Very good, पीयूष. This is the only crop till now which has been allowed by India, the government of India to be used, है ना, as genetically modified crop. देखो यहाँ लिखा हुआ भी है. At present, BT cotton is the only one. तो DNA और जीन एडिटिंग टूल जो है बताना, इसका नाम बताना है, जिससे GM जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है। बताइए। There's a very famous tool called as CRISPR-Cas9. बताया कि नहीं? ये कई बार न्यूज में आता है, ऐसा पूछ लेंगे। CRISPR-Cas9 remains, which remains in the news is what? It's a gene editing tool और DNA editing tool कह सकते हो, या ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म अगर चाहो तो याद आ सकते हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलेंटोमिक रिपीट्स, ठीक है। खैर, तो मैटर इज सब जुडिस रिगार्डिंग BT GM मस्टर्ड। तो BT कॉटन तो अलाउ है ना इसका, बट GM मस्टर्ड में मामले में सब जुडिस है। क्यों, क्या हुआ? ये था, ये हो गया था, 2 जज बेंच ने 1:1 स्प्लिट ऑर्डर दे दिया था। GM क्रॉप, GM मस्टर्ड अलाउ किया जाए कि नहीं, whether GM mustard should be allowed or not. So there was a split order, 1-1, and that is why now it was sent to the larger bench. Now a 3-judge bench will be set up most likely in this regard. इसीलिए सब जुडिस लिखा, यानी मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है। So the matter is pending in the court. That is what you should be knowing about, है ना, ट्रांसजेनिक GM क्रॉप एटसेट्रा एंड ऑल, ठीक है। और GM क्रॉप किसने बनाया है? इसको ना एक्चुअली टेक्निकली GM मस्टर्ड को DMH11 कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं न्यूज में कि DMH11 रिसेंटली इन न्यूज इज व्हाट? धारा मस्टर्ड 11, हाइब्रिड 11। ये एक्चुअली हाइब्रिड है ना, इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड वैरायटी मेड बाय दीपक पंतल, है ना, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। So these are the things you should be knowing. Right. Now the next article is Rupee climbs to a 10-week high. थोड़ा सा Rupee improve हुआ because देखो
अगर आप देखोगे 13 मार्च को 87.39 था, ये $1 was 87.39 रुपीज, और अब थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, अब यहाँ पर आ गया 86 आ गया ना, आप देख सकते हो. सो इंडियन रूपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ, स्लाइटली वी हैव एक्चुअली सीन स्ट्रांग गेटिंग इंप्रूव्ड. चलो एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, बताना है आफ्टर द क्लास इज ओवर कि अगर इंडियन रूपी स्ट्रांग है तो हु विल गेट बेनिफिट, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स. सिमिलरली इसका अपोजिट होता है, अगर इंडियन रूपी वीक है सो हु विल गेट बेनिफिट, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स, किसको फायदा होगा. Go and find out and answer it in the comment section once the class is over. Okay? So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.